All right, so we were doing fine tuning of large language model, and two things I did mention that you can fine tune the outer layers of the LLM so that the downstream tasks which we want to perform that are not so heavy task and the limited amount of engineering is required there we can do. There is one more option is to have full fine tuning of the model. So full fine tuning can be done, but it require lot of resources. So depends whether you are having that task to perform fine tuning or not. If the task is not that much important, or you're not planning to do something extraordinary, so don't or a particular specific kind of chatbot if you're not preparing, so don't do that. Okay, here as you see the complete fine tuning. Okay, it's mentioned task specific fine tuning. I told, okay, you are having a data and correspondingly you do work on it. Then few examples related to task specific like translation, or you can have text classification. Yesterday only I told we can perform that task. Okay, then few more examples can be seen accordingly. Billions of pieces of text that the model saw during pre-training phase. What it is saying, just a few hundred or thousands examples result in a good performance compared to billions of pieces. It's saying that again, as I open my lecture, task specific. Okay, what you want to do, that is important. Is it mandatory to perform the fine tuning entire model, or you are just having classification task, or you are having just translation task? Then please don't invest so much resources or energy. So it is saying that downstream, that means, however, there is a potential downside to fine tuning a single task. The process may lead to a phenomena called as catastrophic forgetting. Catastrophic forgetting means the full fine tuning process modifies the weight of the original LLM. Catastrophic forgetting. If you have a task where you want to entire fine tune the model, यानी आप जिस प्रक्रिया जो मॉडल ने इनिशियली फेस करी है, द प्रोसेस विच द मॉडल डू फेस्ड इनिशियली, वो ट्रेन हुआ है, इट डू हैव अ वेट. नाउ यू वांट टू एंटायर फाइन ट्यून, यानी आप उसको भुला देना चाह रहे हो कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई है अब तुम पूरा भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग. सो एंटायर फुल फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस modifies the original weights of the LLM. That is catastrophic forgetting, which leads to greater performance on a single fine tuning task. Still, आप तो सिंगल फाइन ट्यूनिंग टास्क पर आ गए, आपका काम तो बढ़िया हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑन अदर टास्क, बस ये बिगड़ गया. आई होप यू अंडरस्टूड. अगेन, टास्क स्पेसिफिक, you want to fine tune your model. If you want to perform text classification, it is not at all mandatory to train the entire model. We don't want our model to forget the initial weights. No. Fine.
Therefore, it is better you can just train few layers, because it will disturb the rest of the performance. So fine tuning can improve the ability of a model, like sentiment analysis, quality completion. The model may forget how to do the other tasks. This model knew how to carry the named entity recognition before the fine tuning, but it forget what is the initial potential of the model, but it forget. That is catastrophic forgetting. We can have multitask learning also. Suppose, sir, we want to fine tune our model, not for single task, for multiple task. Multitask fine tuning is an extension of single task, where training dataset consists of example inputs and outputs over multiple tasks. It may happen that your dataset comprises of text summarization, review rating, code translation, entity recognition. There are many things your data may comprise of. So you can train your model on mixed data set also. It is not mandatory. See, we have to improve our thought process. Let me share my entire screen now. The things are not limited in the field of AI. Things do have many more opportunities, and it is scalable. Okay. So if you have a single task, you can give that data supervised, labeled data to the LLM for fine tuning. Okay, this will make your model good. I will say best in the data, according to the data which you have given. But rest will be affected. So, if you want to have other task also, not a single task, multiple task, so prepare a data which is having multiple task in it. That means you can have a data. Okay, here you have, okay, que- column A, column B. This could be question, answer. This could be summary. This could be code. This could be any other task. So just mix up and give it to the LLM. That's what we do. That's what we do. Your LLM can perform such task only, because we have given a huge amount of data to LLM in unsupervised. Okay, in unsupervised learning, huge amount of data is given to the LLM. Just whatever we collected from the entire internet, we submitted to the LLM. We are available with the resources, we are available with the GPUs, memory, everything we are available, just submit it. However, you can fine tune your model to perform these tasks. That is called as multiple. Okay, multiple task. It may take many epochs. Okay, doesn't matter. And then your model get trained, resulting in a fine-tuned model. One drawback of multitask fine-tuned model is they require a lot of data. See, that you have to manage, na? In world of AI, data needs to be managed. That may be like 50 to lakhs of example in your training data. It doesn't matter. We have to take. Okay, so this is multitask. So single task learning can also be there. Multitask learning can also be there. We can have a sequential fine tuning also. Sequential fine tuning is about sequentially adapting a pre trained model on several related tasks. Okay, what does it mean? After initial transfer to a general domain, the LLM might be fine tuned on a more specific subset.
What are you saying? More specific subset means sequential fine tuning. Okay, are you saying that this is my LLM? I have fine tuned my LLM with medical data. Then you are saying that again fine tune your model on medical within medical. But that means for a specific core disease. For example, now I am fine tuning my model on brain tumor. Then for specific tumor or details of that. So this is the huge data of medical. Then you took a subset of that data. Then you took a subset of that data. So LLM fine tuned to this, fine tuned to this, fine tuned to this. This is sequential fine tuning. So if someone say that, okay, can we do this thing? Never deny. That is a pro tip I am giving to you. Never deny. Never. In field of AI, never deny. If someone say that क्या ये हो सकता है, आप मना मत करना. ये कहना मैं पता करता हूँ. आई विल चेक. ओके, आई विल चेक. डिनाई नहीं करना कि नहीं हो सकता. अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता. सब कुछ हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, फाइन. तो भाई बात ये है, सिक्वेंशियल फाइन ट्यूनिंग वी कैन परफॉर्म. और आप देख रहे हैं डेटा सबसेट सबसेट वी आर टेकिंग. देन आगे क्या बोला गया? देयर आर अदर फाइन ट्यूनिंग एग्जाम्पल लाइक अडप्टिव, बिहेवियरल, इंस्ट्रक्शन, री ऑफ LLMs. बहुत सारे टाइप की होती है. कुछ मेन जो है अपन ने देख ली. Fine tuning approaches are now so being widely used, adopted on small language models also, which have become one of the biggest Gen AI trends in 2024. अब अपन SLMs पर भी काम कर रहे हैं, जो कि क्या है, not too much been trained on large amount of data. वो specific है. Okay, for a particular purpose के लिए डिज़ाइन करे गए हैं. दैट मीन्स टू हैव अ स्मॉल बिजनेस. और वो कोशिश कर रहे हैं ना एजेंट्स वगैरह बनाने के लिए. AI एजेंट्स ये कर रहे हैं, चल भी रहा है AI एजेंट्स. ओके, तो आप अपने बिजनेस के लिए AI मॉडल चाह रहे हैं, तो अभी आगे आने वाले समय में आप कह सकते हैं 5 to 10 years में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी हैविंग देयर SLMs, AI एजेंट्स. सबके होंगे. वो मॉडल होंगे उनके पास, AI मॉडल. वो अपने कंपनी अपने इंडस्ट्री के अनुसार काम कर रहे होंगे. मुझे ज़रूरत नहीं है कि चैट जीपीटी जैसा इतना बड़ा मॉडल आई विल बी यूजिंग. मैं नहीं करने, मेरे को जो काम है वॉट एवर आई वॉन्ट ना, तो मैं उसको SLM से कर लूँगा, एजेंट से कर लूँगा. कल को हो सकता है क्रो एक्सटेंशंस भी आ जाएं आपके पास, AI एक्सटेंशंस. ठीक है, ताकि आपके वर्क को कस्टमाइज कर लिया जाए. मेनी पॉसिबिलिटीज, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. अब यहाँ पर आगे आ गया रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. दैट इज अल्टरनेटिव टू फाइन ट्यूनिंग. इसलिए ये फेमस हो गया कि आप अपने डेटा से फाइन ट्यूनिंग यू आर परफॉर्मिंग, इट इज टेकिंग टाइम, इट इज टेकिंग रिसोर्सेस. तो ये मत करो यार, डोंट डू दिस थिंग. रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये 3 वर्ड्स का लफड़ा क्या है? ये रैग, 3 वर्ड्स, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. ये कह रहे हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल.
तो जैसे उन्होंने बोला था रिट्रीवल, तो हम समझ गए कि रिट्रीव तो इंफॉर्मेशन होगी. ओके, वी नीड टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. ऑगमेंटेशन generation means you are generating natural language, no? You are retrieving information and generating natural language. ओके, तो यहां बोला गया एन एल नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. दिस इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैक्स. ये आपका फॉर्मूला बना, इक्वेशन बनी. नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इक्वल टू रैक. अब कहां से रिट्रीव करें इंफॉर्मेशन? फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रिट्रीव? RAG ensure that language models are grounded by external up-to-date knowledge sources, relevant documents, and provide sources. This techniques bridges the gap between general purpose models, vast knowledge, and need for precise up-to-date information with rich context. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में नॉलेज है, डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स से वो बनकर तैयार हुए हैं. दे कैन परफॉर्म जनरल पर्पस टास्क. उन्होंने कहा कि जनरल पर्पस मॉडल है, वास्ट नॉलेज है, दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क. और फिर बाद में द नीड फॉर प्रिसाइज अप टू डेट इंफॉर्मेशन विद रिच कंटेक्स्ट ऑल्सो. नीड फॉर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ये भी हमें चाहिए उनसे, मॉडल से. तो रैग क्या करने वाला है? आपने कहा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. RAG is an essential technique for situations where the facts can evolve over time. The recent invention of explainable AI uses RAG technique to ensure its information is fresh and current. तो आप फ्रेश इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की बात कर रहे हो. अच्छा, fresh information, again the question. चलो, if I do take chat gpt, chat gpt will say, sir, I am having cutoff of year 22 September. आप इससे फ्रेश इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे? कैन यू पिक फ्रेश इंफॉर्मेशन फ्रॉम चैट जीपीटी? वो बोल रहा है मेरा कट ऑफ तो 2022 ईयर सितंबर का है, तो क्या आप फ्रेश इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो यहां से? यस और नो? आई जस्ट वांट एन आंसर. यस और नो? नो सर. नहीं निकाल सकते. चलो ठीक है, आपने कहा सर ऐसे तो नहीं निकाल सकते. ओके, आई गॉट सम कमेंट्स ऑल्सो हियर. आया, ठीक है, लेट मी चेक द कमेंट. नो, ओके, अनिल सर भी कह रहे हैं नहीं निकाल सकते. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जीपीटी से बोलना काइंडली डू वेब सर्च. ठीक है, मैंने माना कि वो सितंबर 22 तक वो ट्रेंड है, ओके. लेकिन आप उससे वेब सर्च का बोलो कि आई वॉन्ट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड काइंडली गिव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्च, और देखो वो करता है कि नहीं करता. आप चाहो तो अभी भी ट्राई करना. ठीक है, यू कैन ओपन चैट जीपीटी एंड यू कैन आस्क अबाउट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन डू सर दैट. करता है वो वेब सर्च. वेब सर्च कर रहा है? यस सर. कर रहा है ना, देखो. तो क्योंकि वो वेब सर्च कर रहा है, अभी हमने क्या बोला कि सर वो तो 22 सितंबर तक कट ऑफ है. लेकिन अब आप देखो, शायद जिनको नहीं पता हो ये बात, वो वेब सर्च कर रहा है. ये पहले नहीं था. ये फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल प्रीवियसली, बट अभी तो कर रहा है. और आप रैक्स में क्या बोल रहे हो?
रैग्स में आपने बोला नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, तो एलएलएम जनरेट ही तो कर रहा भाई अंग्रेजी में, प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इसने वेब से इंफॉर्मेशन निकाली, सही है, इसने वेब से इंफॉर्मेशन निकाली और आपको जनरेट करके इट परफॉर्म द जनरेशन, इट रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, instant information from the web, and then it used its technique of language generation and gave you the output। क्या ये हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर रहा? कर तो रहा है। अब देखिएगा ट्राई करके वेब सर्च चैट जीपीटी पे, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप पूछो न्यूज़पेपर में इस पर्टिकुलर डेट पर क्या आया है, काइंडली डू द वेब सर्च, और फिर देखिए वो दे रहा है नहीं दे रहा। ओके, तो रैक्स का फंडा अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रैक हैज ओवर फाइन ट्यूनिंग इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग एम्बेड्स डेटा इनटू मॉडल आर्किटेक्चर, essentially handwriting the knowledge, which prevents easy modification. On the other hand, rack permit continuous updates on training data, allows removal and revision of data। जो उसके पास था उसको तो अपन रिमूव या रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप नया डेटा नए अपडेट्स ले सकते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन डू विद द रैग्स। So in context of language model, rag and fine tuning are often perceived as competing methods. However, their combined use can lead to significantly enhanced performance of the model। ये और बेटर हो सकता है यदि हम फाइन ट्यूनिंग और रैग का इस्तेमाल करें, तो योर यू कैन अपग्रेड योर सिस्टम, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, particularly fine tuning can be applied to rack systems to identify and improve the weaker components, helping to excel the specific LLM task। तो आप रैग सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड, यानी आपको चाहिए भाई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, यू वांट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीव करना है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और उससे नेचुरल लैंग्वेज जनरेट, दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो गूगल बार्ड जो था वो मुझे लग रहा है, तब पता नहीं ये रैग वगैरह उस समय पर कॉन्सेप्ट कितना क्या हुआ था ग्रोथ में। ये गूगल बार्ड जो हम, जैसे मैं खुद मानता हूँ कि फेल हुआ ये चैट जीपीटी के सामने, ये कहा गया था कि ये रियल टाइम पर काम कर रहा है। आप रैग में यही कह रहे हो ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कर रहे हो ना, रैग यही होगा ना, रैग सिस्टम्स, है ना। कोई यदि आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय रैग, तो आप ये बोलोगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन प्लस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इक्वल टू रैग। ज्यादा लफड़े लफड़े करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन बोल दो उसे। बोलेगा कैसे? आप बोलोगे ऐसे कि वी विल बी परफॉर्मिंग द information retrieval from different sources. Let's take the web as a source, and we have to produce this information. We have to generate this information in form of a natural language, that is RAG। ठीक है, बाढ़ ये करता था रियल टाइम में, लेकिन उसके आंसर मुझे तो कभी पल्ले नहीं पड़े। ठीक है, कि क्या दे रहा है वो, गलत सलत जो भी है वो देता था, तो बना नहीं पा रहा। अब रैग सिस्टम्स तो बढ़िया हो गए। ठीक है, इसी पे काम चल रहा है। एंड जैसे कि आई डू हैव अ डिस्कशन राइट नाउ, वो बोला जा रहा था कि सर रैक पर काम कर रही है कंपनी और हमें अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कोई इशू नहीं, करेंगे भी अपन आगे उस पर। फाइन ट्यूनिंग इन सुपर अनोटेट। अभी सुपर अनोटेशन जो है, सुपर अनोटेट एक एलएलएम टूल है एक्चुअली, that provides a cutting edge approach for designing optimal training data for fine tuning of the models। So super annotate आप देख सकते हो, it's a tool for data annotation। Okay, so just like Databricks, we can choose super annotate to build our training data। आपके पास यदि हो अनोटेटेड डेटा तो टेंशन नहीं है, नहीं हो तो फिर अनोटेट करो, सुपर अनोटेट का यूज करो।
ये एक टूल है टू अनोटेट योर डेटा। जैसे कि वी यूज ना रोबो फ्लो फॉर कंप्यूटर विजन टू अनोटेट आवर डेटा इमेजेस को, उसी तरीके से टेक्स्ट अनोटेशन आप कर सकते हो सुपर अनोटेट टूल से। ओके फाइन, तो इसमें इतना कुछ है नहीं अभी। सुपर अनोटेशन टूल आप चेक कर लेगा अपने लेवल पे। सर, हाँ यस बोलिए। वो खुद समझता है क्या? मतलब सुपर यूनाइटेड उसको हाँ नाम दिया सुपर गया एनोटेशन समझता, है, मैंने समझता आई है? हैवंट यूज दिस टूल सो फार, मैंने यूज नहीं करा, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, क्योंकि वट एवर आई हैव यूज द डेटा फॉर द फाइन ट्यूनिंग ऑलरेडी अनोटेटेड था। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव ओके। यूज्ड सो फार। आपके आप देख सकते हैं फाइन ट्यूनिंग में आई आई टुक द डेटा फ्रॉम द कीगल, जो कि सेंटिमेंट का हो या वट एवर, तो अनोटेटेड था, मुझे जरूरत नहीं पड़ा। नाउ हियर इट इज सेइंग कि आप अनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सर, हाँ या Sir, annotate is like we are giving the text and the summarization label like that annotation or दैट annotation. Okay, okay. that kind of annotation. Manually we are doing like data dict with that we are doing so same thing it is performing. Same thing. Just like Databricks. Okay, so And this is sir, the tool. yes, sir, you told that RAG plus fine tuning, sir, Huh. we do. Uh, what is the application for that? Means in which application we can use that RAG plus fine In tuning? case if we need to upgrade our systems for a specific task, okay, we can perform the fine tuning to get the better results from the rack systems. Okay, because Like yeah. what's been happening here is um, RAG do consider information, latest information it retrieve, and then Mhm. it put in front of you in form of a natural language with a proper. Okay, however, if you fine tune your RAG system, if you fine tune, so information retrieval will remains the same. That's what I understood here. It will capture the latest information. However, the natural language generation will be much more specific according to the fine tuning. Okay, either you are looking forward to get a summary, either you are looking forward to prepare a code. Okay, so you can see the changes. Okay, much more better results. Okay, so fine tuning will be for natural language generation. Information retrieval is fine, but it will present you in a better way. Okay, So right now, in present context, like RAG we use for data extraction, then data feed it extraction. to the vector DB, Huh, and then based on the query we extract and huh. give it to LLM to generate the To generate response. the response, that's what we do. Yeah, Okay, so but from the yeah, vector databases, okay, or you can say web. Just recent information means web. Let us take web. yeah, Okay, so extract the data from the web. Okay, and then give it to the LLM. LLM will make a proper content from it. yeah. Whatever we told, summarize or translate. Whatever. Whatever. Summary, translation, whatever. It Now, will sir, do. fine tuning where we will do See, for LLM. Yeah. obviously for here only, because this is the data which we are extracting. So extraction from the database here, fine tuning is not required. Fine tuning is required at LLM only. Okay, so we can modify our LLM. We can adjust some weights of the LLM specific domain. Okay, and we extract the information. When that information is given to this fine-tuned LLM, then it will give a much more better response according to the fine-tuning you did over this LLM. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल समरी क्रिएट करना। ओके, कुछ भी आप जो भी अपना टास्क लेकर चले हो, अभी एलएलएम जनरल आंसर दे रहा है, जनरल पर्पस। ठीक है, अभी ये जनरल पर्पस दे रहा है आंसर एलएलएम। क्यों? क्योंकि आपने उसको वेब से कुछ भी उठा के दिया, अब वो उसको ऑर्गेनाइज करके क्या वर्ड उसको मेंशन करना है वो करके दे देगा। व्हाट वर्ड्स इट नीड टू प्रिपेयर, वो आपके जो फेच करा है ना वहां से उसको प्रिपेयर करके दे देगा। हाँ. ओके, लेकिन अब जब फाइन ट्यून करोगे आप उसे,
that means you will explain the LLM more in a better way, that ऐसा आंसर बना के दे भाई, ऐसे ऐसे जनरल पर्पस मत दे, तो फिर वो अकॉर्डिंगली बना के देगा. सो आपका Sir, organization point of view, better responses we can expect from fine tune systems. RAG plus FT, yes. अभी सर जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर चाहिए होता है तो लाइक प्रॉम्प्ट हम लोग दे देते हाँ, प्रॉम्प्ट हैं, देते हैं तो पहला प्रॉम्प्ट ये रहता है, बिल्कुल सही आप प्रॉम्प्ट कह दे रहे हो. देता है। बिल्कुल बिल्कुल यही है. पहला तो आपको फाइन ट्यूनिंग के नाम पर प्रॉम्प्ट ही बताया है मैंने, प्रॉम्प्टिंग ही तो बताया था. वन शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट्स. ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग ही तो बताया है पहले. फाइन ट्यूनिंग तो का मतलब पहला स्टेप प्रॉम्प्टिंग हाँ, ही है. बाद तो में कुछ जाके सेट फिर प्रॉम्प्ट आपने, पे ट्रेन करना। हाँ ये भी कर सकते हैं आप बिल्कुल. आप एक काम करिए, आप एक टेम्पलेट तैयार कर लो. टेम्पलेट, ठीक है, तो टेम्पलेट में आप मेंशन कर लो कि ये प्रॉम्प्ट रहेगा, ये आंसर रहेगा. ठीक है, तो ओके। करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑल्सो यू कैन ट्रेन, नो वरी, कर सकते हैं बिल्कुल. प्रॉम्प्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एलएलएम फाइन ट्यूनिंग में. बाद में फिर आपने सुपरवाइज्ड में और ये कहा कि अपने डेटा से ट्रेन कर रहे हैं, और फिर आपने कहा या तो पूरा एंटायर मॉडल कर रहे हैं या फ्यू ऑफ द लेयर्स यू आर डूइंग. ठीक है, फिर आपने सिक्वेंशियल भी बोला, एंड देन देर आर डिफरेंट वेज. लेकिन अब जाके रैग आ गया, बिकॉज यू रिक्वायर मोर रिसोर्सेस फॉर द फाइन ट्यूनिंग, तो आपको टास्क ऐसे करना है तो रैक्स सिस्टम्स का यूज हो सकता है. ओके, ये दिस इज व्हाट इट्स मेंशन्ड. तो सुपर एनोटेशंस हैं, इट्स अ एलएलएम फाइन ट्यूनिंग टूल. चेक करिएगा, इट इज कस्टमाइजेबल. ओके, इट अलाउस यू टू गैदर डेटा ऑल्सो. वी कैन वर्क ऑन वर्ल्ड क्लास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, पीपल मैनेजमेंट ही कर सकते हैं. एनालिटिक्स कैन बी परफॉर्म, इनसाइट्स कैन बी ड्रॉन, ये सब कर सकते हैं. तो इसमें एपीआई इंटीग्रेशन भी है. ओके, सो दैट्स व्हाट यू कैन यूज सुपर एनोटेट. चेक करना आप ये क्या बोलता है, कैसे क्या करता है. ठीक है, सो फाइन ट्यूनिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? क्लियरली डिफाइन योर टास्क. ओके, what you want to do, you have to define your task. Yes, Anil sir. Sir, the RAG which you are telling, it is हाँ, only meant for text, or is there any application related to images, sir? अच्छा, इमेजेस से रिलेटेड, अगेन जो मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले, डिनाई किसी भी बात को मत करो, डोंट डिनाई. तो सर ऐसा है, आई कैन सर्च इमेजेस, आई कैन सर्च वीडियोस फ्रॉम द इंटरनेट, एंड राइट नाउ वी आर हैविंग एलएलएम्स दैट कैन टेक एनी काइंड ऑफ इनपुट, क्योंकि वो मल्टी मॉडल है. वी डू है मल्टी मॉडल. आपका चैट जीपीटी भी बोलता है कि मेरे को इमेज दे दो, मैं आपको उस पर टेक्स्ट बना के दे दूंगा व्हाट इज हैपनिंग इन दैट इमेज. तो सर वो तो मल्टी मॉडल है, तो सर रैग भी मल्टी मॉडल हो गया. बिल्कुल मना नहीं करूंगा. यस, we can search anything from the databases. It can be an image, it can be audio, it can be video, it can be text, that can be given to the LLM for interpretation. It can be used Sir, for, like that, recently Copilot is having those all हाँ, provisions, sir. हाँ, all the Also, sir, possibilities. today one more paper you have added, no, sir, that हाँ, हाँ, pyramid, पिरामिड, हाँ, हाँ सर, पिरामिड. which is पिरामिड again a पेपर इज, part of हाँ, this. पिरामिड इज लाइक text to video generation. Okay, you can give a prompt and it will generate a video based upon it. Okay, it's new. That research paper, I guess, released on 8th of October only. Okay, so Yes, sir. Done, sir. Thank you, sir. okay, so rags also, we can, from the database we can take all these things, we can give to the LLM and it will generate you the output. So clearly define your task, what you want to do. Choose and use the right pre-trained model. See, there are many LLMs. Okay, right now. So, what pre-trained model you want to use? GPT 3.5 or Llama or Gemma, whatever you want to use, you can. However, every LLM, they are being now good enough to give you better results or the responses. Okay, Meta has launched, Google has launched, OpenAI has launched. You are already working with OpenAI models, you can choose. The important thing is computationally efficient and the time saving.
ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर पे पूरा, आर्किटेक्चर और हाउ मेनी पैरामीटर्स इट डू हैव, कितने पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। वैसे तो वी नो दैट कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड होता है, तो लाइट वेट वाला उठा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वी डू हैव 2B, वी हैव 8B, है ना, तो 2 बिलियन 8 बिलियन, अब 2 बिलियन वाला उठा लोगे तो बेटर रहेगा। ओके, फाइन। तो ये बोल दिया ना इसने आर्किटेक्चर, तो भाई ये ना भी बोले तो हमको सब पता है, कोई ज़रूरी नहीं। हाइपर पैरामीटर सेट करना ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइन ट्यूनिंग में करेंगे भी, विल डू द प्रोजेक्ट ना ऑन लामा फाइन ट्यूनिंग। तो नंबर ऑफ ईपो, बैच साइज कितना है, वेट डीके कितना है, ऑप्टिमाइजर कौन सा ले रहे हो, लर्निंग रेट क्या है, ऑल दीज पैरामीटर्स यू नीड टू सेट। तो फाइन ट्यूनिंग में विल बी यूजिंग पाइटॉर्च, ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो वहां पर ये सारे पैरामीटर्स हैं, देर आर मेनी पैरामीटर्स, मेनी हाइपर पैरामीटर्स जो सेट करना रहे। एक बार हो जाए तो यू कैन इवेल्युएट योर मॉडल परफॉर्मेंस, ये करते ही हैं अपन ऑन अनसीन डेटा टू चेक द रिजल्ट्स की भाई सेंटीमेंट एनालिसिस वी डिड परफॉर्म, तो आर यू गिविंग द प्रॉपर रिजल्ट और नॉट ऑन द सेंटीमेंट एनालिसिस, करते हैं। सर नहीं चुवान यस, सर। हाँ यस। सर एक बार हमारे डिस्कशन के बीच में आया था कि टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च है हमारे पास, और हम पाइटॉर्च तभी यूज करते हैं जब टेंसर फ्लो कुछ चीजों में फेल हो जाता हाँ है। फेल हो रहा है। वो कौन सी चीजों में फेल होता है सर? देखिए यहाँ फ्रेमवर्क जो है हैवी मॉडल में ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। दिवेश, आप जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हो ना, वहां पर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हो रही है। टेंसर फ्लो लग कहाँ रहा है, देखो कुछ बेसिक टास्क है, जैसे आप प्री प्रोसेसिंग के लिए यू आर अप्लाइंग टेंसर फ्लो, इमेजेस की प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये बड़ा काम नहीं है प्री प्रोसेसिंग इमेज की। कल सबसे बड़ा लफड़ा होता है ऑप्टिमाइजेशन में, जब आप वो ट्रेनिंग करवाते हो ना, ईपोस जो चलते हैं वहां पर ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होती है, वेट अपडेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेट अपडेट हो रहे हैं ना, ये कंप्यूटेशन कौन कितना फ्लेक्सिबल करवा पाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो टेंसर फ्लो चलो अपनी जगह है, वो भी गूगल का प्रोडक्ट है। पाइटॉर्च जो है ये मैं देख पा रहा हूं अभी काफी फेमस है, वेदर यू आर टेकिंग LLM, वेदर यू आर टेकिंग कंप्यूटर विजन्स ऑल्सो, तो पाइटॉर्च फ्रेमवर्क जो है इस पर वो ये काम जो है वो अच्छे से कर पा रहे हैं। अब आप कहो फेल, फेल वाला तो क्या मैटर बोलूंगा मैं, सपोर्ट प्रोवाइड करना इन कंप्यूटेशंस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए, वो सक्सेस प्रोवाइड करता है आपको। ओके, यही एक जगह है जहां पर आप कह सकते हो कि कौन सा फ्रेमवर्क अच्छा है। ओके, तो LLMs में टेंसर फ्लो तो आई हैवेंट, मतलब मैं तो अभी नहीं यूज करा, ठीक है, पाइटॉर्च ही यूज करा है। टॉर्च, पाइटॉर्च या टॉर्च बोले, टॉर्च, टॉर्च विजन, ये इसके कुछ और जो टाइप्स हैं। और फिर ये बात ये है कि जीपीयू, मैं फिर बोल रहा हूँ जीपीयू को जबरदस्त सपोर्ट है, जीपीयू सपोर्ट इनका शानदार है। आपकी बात निकली हो, आपका डिस्कशन निकला हो, तो आपको ये बात कहनी है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है ना, यू हैव टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन, ये वाला ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी, ये मैथ्स हो रही है। तो ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है विच कैन प्रोवाइड मी अ बेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म दिस टास्क, वो है पाइटॉर्च, जो जीपीयू का सही इस्तेमाल भी कर लेगा, क्वांटाइजेशन भी परफॉर्म कर लेगा, यानी हाई बिट्स टू लो बिट्स में कन्वर्ट करना और पूरी मैथ्स लगा लेना, वो ये पाइटॉर्च दे रहा है। तभी ये अच्छा है और ज़्यादा प्रिफर्ड है, ऐसा नहीं टेंसर फ्लो भी ले रहे हैं बट ये प्रिफर्ड है। गॉट इट। सर तो और इसको सारे ध्यान में रखना। हाँ सारे यस, जॉब डिस्क्रिप्शन में सर वही लिखा है, पाइटॉर्च पाइटॉर्च, टेंसर फ्लो किधर भी नहीं लिखा है। हाँ वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेटा का है पाइटॉर्च, ठीक है, तो इसी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि जीपी यूटिलाइजेशन इसका शानदार है, और ये कैलकुलेशन जीपी यूटिलाइज करके ये कैलकुलेशन अच्छे से कर लेगा ये, और ये तो मुझे करवाना है ट्रेनिंग में ऑप्टिमाइजेशन, तभी मैं यूज़ करूँगा उसको, पाइटॉर्च को। How it can handle the hyperparameters, how it can handle the mathematical solutions, gradient calculations, how it can take the memory resources,
कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी उसकी अच्छी, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, पाई टॉर्च। ठीक है, तो ये बात है। फाइन। तो आप अपने बिजनेस के लिए, नीड के लिए, यू कैन फाइन ट्यून स्पेसिफिक जो भी टास्क हो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंसी, यू कैन फाइन ट्यून योर मॉडल। ओके, सो इट कैन improve द एक्यूरेसी, इट कैन कस्टमाइज टू, व्हेन यू फाइन ट्यून योर मॉडल वो कस्टमाइज हो गया, आपके अनुसार आंसर देगा, वो कस्टमाइजेशन हो गया। Data privacy and security. General LLMs might generate output based on publicly available data, but when you will fine tune your model for a specific set of data for business, you can control the information relevant हो जाएगा वो। ठीक है, every business encounters rare but crucial scenarios specific to the domain, तो भाई हम डोमेन स्पेसिफिक काम करेंगे। Okay, so while LLMs offer broad capability, fine tuning sharpens the capability to fit according to the business needs. To fine tune or not to fine tune, sometimes fine tuning is not the best option। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राइट अ 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट श्योर आई शैल वर्क ऑन दैट इन द मॉर्निंग, राइट इट नाउ। ओके, ये क्या समझ में आया? वी कैन हैव स्लैक मैसेजेस ऑल्सो कुछ। अब देखो वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी कर सकता है। आपने उससे बोला भाई तू बना के दे दे, वो कह रहा सुबह करूंगा। देखिए क्या है ना, अब वो आपका असिस्टेंट है, तो कई बार असिस्टेंट भी धोखा दे देते हैं। आप किसी को बोलो कि ये काम करके दे देना, तो वट एवर बी द थिंग्स वी आर लर्निंग डूइंग ना, ये सब आप डे टू डे और रियल लाइफ से कनेक्ट करना है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं और चले जाओ। ये आपका असिस्टेंट है, आपने बोला ये काम कर देना, तो वो इधर उधर घूम फिर के आ गया और बोला साहब वो तो मिले ही नहीं मेरे को, हो ही नहीं सर, एक काम करूंगा सर सुबह करूंगा। ये वही ये एक एग्जाम्पल है, उसको वो मत मानो। ठीक है कि अरे सर ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही बोल दे, नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कैन गिव यू स्लैक मैसेजेस। वो कह रहा है कि हमने फाइन ट्यून तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वी मे नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स, हमें नहीं मिल पा रहा। तो फिर और अलग बड़ा डेटा लो, फाइन ट्यून उसमें और अच्छे से प्रॉपरली मेंशन करो। ओके, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए और बेटर मेंशन करो, फिर करो आपस से ट्रेनिंग, तो हो सकता है ये इशू। ओके, बस ये कंसर्न करा, बाकी आपका ऐसे ही काम हो रहा है तो कोई इशू नहीं, LLM यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फाइन ट्यूनिंग ऑफ द LLMs। Okay, if there is something more left, I will be presenting to you in the tomorrow class.